माणक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर धार। एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਮ ਰਸਰਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਟਿਓਂ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। दरअसल आप लफ्ज पढ़ी जाने तो सुनी जाने, और वग्गां दे वग ने गुरु, लेकिन सतगुरु कोई नहीं। नाल ही उन्होंने गुरमुख प्यारियां ने पंक्ति पढ़ी, शब्दा गुरु दे कोल जाएगा ना तो कला ये नहीं वेखना भी नाल चौल ने ते नाल दही ते बाल्टी भर ला, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਰ। ਵਿਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ गुरमुखा बाहर तेरा कोई दुश्मन नहीं, तेरे दुश्मन तेरे अंदर ने। संस्कृत भाषा दे विच अर दा नाम है दुश्मन वैरी। वीर दा भाव विच जिहड़ा गुरु दा शब्द है ना, उहनूं दिल नूं बाहर भटकण तो रोक के अंदर ले आएगा, ताकि अंदर झाती मार पे तेरे दुश्मन तेरे अंदर ने। आप आम करके बहुत ही एनर्जी बाहर लाई जाने, सानू बाहरों खतरा घट है तो अंदरों ज़्यादा, क्योंकि ये पंजे दे पंजे विकार साडे अंदर हैं। ये नाल ही असीं गुरु की बाणी की एक पंक्ति भी पढ़ते तो सुनते हाँ। जिन मिल मारे पंच सूर बीर ऐसो कौन बली रे, जिन पंच मार बदार गदारे सो पूरा ये कली रे। है घुमाई दा लाल जिन्हें पंजां नूं मारिया होवे। गुरमुखों पंजां नूं मारना तो एक पासे चंद्रा एकरी जे मरदा, पंजां नूं मारना बहुत औखा है। अपने को एक नहीं मरदा। मेरे सामने उदाहरण आ गई, क्यों कथा किहो जिहा टॉपिक हुंदा भी पंक्ति दे विचों पंक्ति निकलदी, ਉਹਦੇ अर्थ गांह तुरे जांदे ने। मैं अंदौर बाबा जी का प्रोग्राम से उत्थे गया तो अंदौर तो उजैन शहर आता। जदों मैं लंघिया तो एकदम मेरे अखां के सामने उजैन का इतिहास लंघिया। उस उजैन शहर दे विच एक राजा भरथरी होया, जिहदा अपनी धर्म पत्नी नाल बड़ा स्नेह सी। ये किसी गुरमुख ने पढ़ना हो तो ग्रंथ जे विराग शब्द तुसीं उहदे चों भी पढ़ सकते।
ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਭਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਹਾਵਤ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਸਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਸਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੂੰਟਾਂ ਭਾਲੇ। ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਏਡਾ ਚੰਦਰਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਖਾਈ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ ਪੁਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਾਲੀ, ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ, ਤੂੰ 50 ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਨਕਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਚ ਢੱਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀਏ ਰਿਉ। ਸਿੱਖੀਏ ਆਪਣਾ ਬਗਾਰ ਬਰਾਨਾ ਸਾਂਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਤੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦਾ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਰਾਜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਐਨ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਦਸਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਭਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ 3 ਢਾਹ ਦਿਓ, 2 ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦਸਵੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਅਮਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੂੰਢੀ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਓ ਜਾਗੋ, ਮਰਿਓ ਜਾਗੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਡਿਠਾ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਦਸਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮਦਈ ਸੁਸਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਚੁਸਤ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੇ ਪਵੇ। ਦਸਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮਕੋ ਰਹਿਣ ਵਿਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਤ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮਕੋ ਰਹਿਣ ਵਿਆਏ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧ ਜਪਤੇ ਹਮ ਲਈ ਬਚਨ ਗੁਰਦੈ ਹਮਾਰੇ, पूत यही प्रण तोए प्राण जबला खड़थारे, निज नारी के साथ नेहो तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज पूल सुपने हो न जाइयो। सिखा पर ताकतां की सुपने दे विच बुरा फुरना ना कर। ये राजे भरथरी दे विचों कुदरती तौर पर इस पास एक पॉइंट आ गया। उस दसम ग्रंथ विच ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਸਨਾਥ। ਉਹਨਾਂ 24 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ। ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਸਵਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਥਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਵੇਸਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਸਵਾ ਹਾਂ। ਵੇਸਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਦੀ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲਓ। ਅਜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 2 ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਸਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਪਾਂਗੇ। ਰਹਿ ਪਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਕੱਟੋ। 29 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕਾਹਦੀ ਕਟਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਰੱਸਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ।
मैं एक रात कट्टी सी, तू कहना भड़के जा, जे मुड़ के कहना भड़के जाओ, परसों जाओ। चोर महापुरुषों के पैरों से पै के कहन लगा, बाबा जी रब का वास्ता जे एक रात होर कटो, मैं चोरी करन चलिया, पता नहीं तुहाडी ते मेरी किस्म फर्क है, दा नहीं जे लगदा, शायद अज काम बन जाए, तो मैं चाहना भी मैं तुहानू कुछ दे के विदा करा। वो महात्मा चोर दे पैरी पै गया, कहन लगा मैं तेनू गुरु धारण किया। ये पॉइंट की क्यों धारण किया? कहन लगा कि रोज चोरी करन जांदा है, उहदा दा नहीं लगता, पर उन्हें अपना काम नहीं छड्डिया, अजे आस रखता है। आपां आस नहीं रखते। ज्ञानी जी तुसीं कहिंदे सी इन्ने पाठ करो, पाठ कर ले, जे काम नहीं होया हुण नहीं जे नितनेम करना। धर्म में आस चाहिए है, उम्मीद चाहिए है। जे उम्मीद रखेगा ना, गुरु खोटियां तू खरे करदा। मैं गल कहन लगा सा बकारां दी। वेसवा दे कोलों राजे ने अमृत फल लै लिया ते दाबा मारिया, कहन लगा तेनू मिलिया किथों? वो कहन लगी जी मैं कि दसा, तुहाडे नौकर ने दिता, फलाने ने। जो नौकर नूं ताड़ना की ते कहन लगा जी तुहाडे घरों मिलिया जे राणी कोलों। राजे दे मन नूं सट लगी। राजा भरथरी जोगी बन गया। जोगी बन गया। उस समय के रिवाज मुताबक, अपने धार्मिक अकीदे के मुताबक कान पाड़ ले, लंगोटी पहन ली, तुरिया जा रहा रात चानी रात। कोई बंदा पान की थुक सुट के गया ते फुरना फुरिया, मना किते लाल ना होवे। जो न्यों के हथ पाया ना, थुक नाल हाथ लिबड़ गए। और उस राजे ने, एक भरथरी ने पंक्ति लिखी उस वराग शत ग्रंथ विच, कहन लगा रतन जड़त मंदिर तजे और सखियन के साथ रे मन धोखे लाल के दियो पीक में हाथ। ਇਹਦਾ अर्थ की है? कहन लगा भावें रतन भी होण ते भलिया जे रत्नां दी गल सी ते तेरे मकान च रतन लगे हुए सन, वो कोई छड्डे ही। घर रतन छड्ड आया पर मन चो रतन नहीं गए। रतन की भावना करके थले होया ते थुक नाल हथ लिबड़ गए। क्यों लिबड़े? अजे वो वासना नहीं मरी। इनू कहंदे ज लोभ। अगे जाके भी लिखा तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रे, परे परे ही को लुझी है। एक औगण गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह मेरे माल कहते होंगे ने, मरेक मीन प्रेंग पतंग कुंचर एक दोख बनास, पंच दोख असाध जामै तां की केतकास। मित्रा ये पांच जानवर ने वख वख, इन्हां च एक एक औगण है। एक एक औगण करके मारे गए। तेरे कल्ले दे अंदर पंज ने, तू किवें बचेगा? अपने कलियां च पंज। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने ताइयों दा कि आप बड़ियां बाहां उच्चियां करते, मेरे नाल कोई पंजा पा के वेखे। मैं सीधियां करने का, अपने वाल निकले नहीं, दूजियां नूं सीधियां करदा है। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे। जिन्ने पंजा नूं मारिया इहो जिहा सूरमा कौन है। जिन पंच मार बदार गुदारे सो पूरा, ए कली रे ओ पूरा है जिन्ने ना पंजा नूं मारिया। उन्हां पंज किहड़े ने? मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख बनास, पंच दोख असाध जामै तां की केत आस। जिहड़ा हिरन है ना, इनू कान रस बड़ा, कान रस
ਤੇ ਕੰਨ ਰਸ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਚੌਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਢਾਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ, ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਿਵੇਂ ਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਏ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਸੁਣਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਰ ਜਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੰਮੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਿਆ ਸੱਤ, ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਝੂਠ ਨਾ ਸੁਣ, ਸੱਤ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਗਿਆਨੀ ਬੂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਸੇ ਪਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ 'ਚ। ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਕੜਕ ਜਾਈ, ਮੈਲ ਖਾਨੇ ਮੈਲ, ਪਰ ਭੁਰ ਜਾਣੇ ਨਿੰਦਾ ਭਰੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਵਾਨਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਚੋਂ ਪਰ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣਗੇ ਨੈੱਟ 'ਚ, ਇਹ RSS ਬੰਦਾ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ, ਬੜੀ ਐਲਰਜੀ ਪਈ ਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ RSS ਆਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਰਾਮ ਰਮ ਸੰਗ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਰਾਮ ਰਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਲੇਟਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੱਜ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ, ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਗ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰਘੂ ਕਾ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਤ ਘਰੇ ਪਿੰਡ ਮਿੰਟ ਗੁਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਰੋਵੇ ਐ ਜਿਸ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਦਾਰ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਗ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਭੜ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਉਂਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਆਖਰ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੜ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿੱਧ ਆ, ਲਿੱਧ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲਿੱਧ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਲਿੱਧ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਥਾ ਜੇ ਕਥਾ।
एक पंक्ति की व्याख्या जी इन्हें कहा भी गल्लां बातां नाल सार गया भाई जसवंत सिंह बुढ़ा जाया सी ते आउंदा जांदा कख नहीं, मैं तैयारी नहीं करके आउण तां साखियां सुणाउण, तैयारी नहीं की उन्हें तां साखियां लाई गया। उन्हें लिद लै ली, जाके रख दी। कुछ समय तो बाद राजा उस पासे गया तो लिद दे ढेर बन गए। कहने लगा बाबे ना इत्थे घोड़ा ना खोता तो ढेर लगे। कहने लगा राजा दान किया है, तेरा दान वध रहा, ये की होएगा? कहने लगे राजा खाना पैना ही। बाबा जी कोई दा पा है? वो महात्मा कहने लगे पा इहो है भी लोगों को निंदिया करा, जेड़े करनगे तेरे पार्टनर मुड़ के वंड वंड के खा रहे सारे, करा निंदिया। उन्हें जुगती वरती, एक बीबी नूं कहने लगा तू मेरी धी समान पर मेरी मदद कर, मेरे रथ विच बह जा। नकली शराबी बन गया। लोग ही कहने लगे किड्डा बुढ़ा बंदा ते मत मारी की बुढ़े बारे की करतूतां करदा ही। लोगों ने निंदिया की। कुछ समय तो बाद जो वो आया 2-4 महीनों बाद तो बाकी दे सारे ढेर उड़ गए। अजे निकी जी ढेरी कहने लगा बाबा जी आ किवें? कहने लगा जेड़ा हथीं दिता है ना ये तेनू खाना पैना है, क्योंकि आप पढ़ते ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई ना पकड़िए किसी कथाए। जेड़े हथ नाल कीता ना उस हथ नाल लैना पैना, क्योंकि आप पढ़ते जैसा बीजे सो नुने कर्मा संदड़ा खेत एज यू सो शैल यू रीप। जेड़ा बीजेगा ना वह कटना पाएगा। कहते ने राजे एजस ने वो झोली च पवाया तो अपने रसोईए नूं कहने लगा मित्रा इनू पीस दे, जो मैं रोटी खावा तो चुटकी च मैनू भूरा पा दे दिया कर। जो उन्हें लिद खाधी तो कहते रोवे एजस भीख्या पाए ऐसी दरगे मिले सजाए। ये विचों मैं गल ये तां कही भी निंदिया एडी माड़ी है, निंदिया एडा वड्डा गुनाह है। इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह जिवें आपां कहने जी फलानी तीजी स्टेज ते कैंसर आ गया, उन्होंने इलाज नहीं। कैंसर बड़ी नाम बराद बीमारी है। जे दूजी स्टेज ते आपां कहने डॉक्टर कहते कोई गल नहीं हौसला रखो इलाज लम्मा पर बच जाएगा। जो तीजी स्टेज ते आवे तो कहते जी हुण साडे हथ खड़े ने। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने सारिया बीमारियों का इलाज दसिया, पर कहते ने एक अजे बीमारी का इलाज नहीं। केड़ा औखद सभे कीतियां निंदक का दारू ना है, बाकी दियां दवाइयां हैं पर निंदा वाले का दवा नहीं। चुगल खोर ना चुगलियों मूल टलदे गल कहंदियां कहंदियां कह जांदे। जेड़ा चुगल खोर है ना उन्हें गल करदियां करदियां कर जानी है। इस करके एक ऐब यह है खाण का, एक है निंदिया का। मैं उस पासे ना जावां फिर उत्थे आवां। जेड़ा हिरन है ना इनू कान रस बड़ा, माफ करना, कान रस बड़ा सुनने का बड़ा चस्का है। आप पर जाना गुरु अमरदास पातशाह की बाणी पढ़ते हैं, सुनना माड़ा नहीं। ए सरवण हो मेर हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी, शरीर लाए तो पा बिल्कुल कंसनट्रेट होके सुनो। ये नहीं भी बैठा तू इत्थे है तो काबल घोड़े खरीदी जाना। अंतरजामता गुरुद्वारा सुल्तानपुर साहब वाला सुनिया सत संतोख, संतोख दे नाल सुन ते आपां तां कहने इन्ने पाठ कीते ते आ मिल जाएगा, इन्ने पाठ कीते ना आ मिल जाएगा। याद रखिया जे धर्म प्यार है, धर्म व्यापार नहीं। व्यापार लेना जानता है, प्यार देना जानता है। जे प्यार आ गया तो गल बन जाएगी, जे व्यापार है तो मित्रा सौदा लैन देन का गल नहीं बननी। आपा व्यापारी लोग आ। सुनिया सत संतोख, सत सुन, संतोख दे सहज सुन, ज्ञान हो जाएगा। मैं बेनती की थी एक पंक्ति साड़ा जीवन बदल देगी। ਉਹਦੇ 'ਚ एक अवगुण है सुनने का। मृग, मीन, मच्छी
मच्छी नूं खाण दा बड़ा चस्का है। तुसीं तां दरिया दे कंढे ते रहिंदे, तुहानूं ज़्यादा तजरबा होना है। किवें खलोता गुरमुखा बाप ज्ञानी जी कुंडी पाई है काहदे लई? मैं ना सियाल बड़ा ठंड बड़ा, अज कहंदे उत्थे कथा होनी, माड़ा जिहा शरीर नूं हीट ना कर लईए, मच्छी गर्म हुंदी आ ते असीं कहने ज्ञानी जी कदी आ जाए। ਉਹ मैं ना गुरमुखा चलो मच्छी ठीक है, मच्छी नूं फड़ना मच्छी कोलों सिੱਖਿਆ ਲੈ, मच्छी नूं पकड़ना मच्छी कोलों सिੱਖਿਆ ਲੈ। ਕਿਹੜੀ? मैं टाइम नहीं जे पास कर रहा, बापू दे बोल ने, मीन पकड़ फांक्यो और काट्यो, रांद कियो बहु बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तऊ ना बिसरियो पानी। मच्छी खा ना, मच्छी कोलों प्रेम करन दी जाच सिख, मच्छी कोलों प्रेम करन दी जाच सिख। मच्छी खाण दे शकीन ने मच्छी खाधी, पूरा पूरा दंदां नाल पीसिया, पोह दा महीना, ते घरवाली नूं कहण लगा मेरे सराणे ठंडा जग दा पानी दा जग रख दिया जे। भी इहनूं पुछे भी इहने कंपीटीशन पर दौड़ ला के साह चढ़दा इहनूं? वो कहंदी क्यों? कहंदा मच्छी खाधी है। रात नूं 1 बजे प्यास लगी, पानी दा जग चढ़ गया, अगे नहीं सी पींदा, अज तां पीता क्योंकि अंदर मच्छी पानी मंगदी है। इहनूं कहंदे इंटरनल अर्थ। मच्छी दा पानी नाल स्नेह है, मच्छी दा रेजा रेजा हो गया, मच्छी पेट विच भी चली गई, लेकिन अजे भी मन विच खिच है पानी दी। इनू कहंदे एक पक्ष, ऑब्जेक्ट पक्ष, पैसिफिक एक पासा। जिवें मच्छी खाण नाल प्रेम करदी है ना, एक जवान दा चस्का ते ओदी मौत होई, कुंडी लाई किसे ने, बड़ा खांदी है, पर भुलेखा पिया भी पता नहीं कुंडी नाल की है। जदों आण के जबान दे नाल अगे वधी, कुंडी वाले ने बाहर खिंचा ते जान चली गई, मारी गई। जेड़ा हिरन है ਉਹਦੇ ਚ एक औगण है सुनन दा। भाई गुरदास ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਡਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਘੰਡਾੜਾ। ਇਹਦੇ में अर्थ हरमिंदर सिंह गिल के पिता जी को पढ़े ने, ज्ञानी दलीप सिंह होरां कोलों। घड़े के उपर चमड़ा जिवें आ जोड़ी हुंदी मड़ी हुंदी ने, इस प्रकार चमड़ा लगा हुंदा है, ਉਹਦੇ च मोर दा खंभ टंग दिंदे ने, ਉਹਦੇ चों एक आवाज़ निकलती, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਡੇ हेड़े की आवाज़, तो उस आवाज़ ते हरन आण के अपना मूँह रख दिंदा है। मैं वेख्या नहीं, पर मैं ज्ञानी दलीप सिंह होरां को पढ़िया। ਉਹਦੇ च एक औगण है सुनन दा, मच्छी च एक औगण है खाण दा। मृग मीन भरिंग अगे आउंदा भौरा, जिहड़ा भौरा है ना, इनू सूंघण दा चस्का है। फुल ते आके बैठा, मुग्ध हो गया, चेता भुल गया। सवेरे फुल खड़िया सी, शाम नूं मिचिया गया। जदों फुल मिचिया गया, पसारी ने तेल कढ़ना, ते फुल दे नाल भौरे दा तेल भी निकल गया। तेल तां कढ़ना सी उन्हें फुल दा, पर एक कमजोरी, एक ऐब, सूंघण दा चस्का, सूंघण वास्ते आया तो अपनी जान गवा गया। अगे आउंदा पतंगा, जिहड़ा पतंगा ना, उहनूं वेखण दा बड़ा चस्का है, पर ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक पक्ष चंगा है। तुसीं कंध दे उपर दीवे दीयां फोटोआं 50 बना दिओ, वो दीवे दी फोटो ते नहीं आएगा। दीवा जगाओ, दीवे दी लाड़ ते आएगा, उन्होंने फड़न दी यत्न करेगा। लाड़ की फड़नी सी, अपनी जान कुर्बान कर गया। ते कमजोरी की है? वेखण दी। मैं लफ्ज कहंदा फबदा नहीं, मेरी पदवी के मुताबिक, मेरी उम्र मुताबिक शोभदा नहीं। मैं मंजी साहब को जिक्र किया सी, गुरु के सिखा तू गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह को चलिया ते डेले टड़ टड़ के वेना भी बड़ा सोहना ते बड़ी सोहनी है, ये तेनू शोभदा? गुरु ग्रंथ से सच्चे पातशाह तेनू कहंदा परतरे रूप ना पेखे नेत्र,
इन्हां अखां दे नाल ये माड़ी भावना नाल ना वेख। जे वेखना ही ना, ए नेत्र हो मेर हो हर तुम में जोत भरी, हर बन अवर न देखो कोई, हर बन अवर न देखो कोई, नदर नहीं कर लिया लिया। ये तो बिना होर वेख ही ना। जे वेखदा तेरा वेखण दा ढंग गलत है। ਉਹਦੇ 'ਚ एक ऐब वेखण लई गया तो जान गवा गया। अज कंध दे उपर किसी और दी फोटो लगी है, असी गड्डी चला रहे हैं, भावें साडी गड्डी सूई डिग पे पर वेखी फोटो वाले पासे जाने आ, भावें जान ही चली जाए। चौथे नंबर ते आउंदा है 84 लाख जून में सब तो वकारी सैक्सी हाथी। बड़ी लम्मी चौड़ी की व्याख्या गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी की है। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे अंक सहो सीस। जेड़े हाथी फड़न वाले लोग ने ना, टोआ पुट के तो उपर छत पा के नकली हथनी बना देंदे ने, और वो नकली हथनी के भुलेखे जो उत्थे आउंदा ते टोए च डिग पैंदा। 3-4 दिन भुखा रखण तो बाद ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ करके मुड़ के कुंडे नाल तोड़ते तो सारी जिंदगी गुलाम रहिंदा हाथी। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह कहंदे भलिया थोड़ा जिहा सियाणा बन, इन्हां च एक एक ऐब है। पंजे दे पंजे मारे गए, तेरे कल्ले च 5 ने, तू किवें बचेगा। मृग मीन प्रेंग पतंग पतंग कुंचर, एक दोख बनास, 5 दोख असाध जामै, ताकि केत कास। जिदे कल्ले च ना पकड़न वाले 5 ऐब ने, एक किवें काबू आएगा, एक किवें बचेगा। इहदा तरीका की है। मेरे गुरमुख प्यारे जिहड़े कीर्तन कीता सी ना, इन्हां ने असीं 6 साल एक जमात च इकट्ठे पढ़े हाँ। ये थोड़ा चुस्त ला के हुशियार सी, इन्हें वाजा सवारा सिख लिया, तो मैं गल्लां वाला सा, मैनूं राग नहीं आया, तो मैं तो गल्लां नाल सरी जाना। ये बड़ा चलाक सी उदों दी। इन्हें कीर्तन सिख लिया, राग सिख लिया, तो मैं बैरागा है, तो मैं गल्लां नाल सारी जाना। गुरु कृपा करे ਇਹਦੀ भी रखे तो मेरी भी रखे। गुरमुखो ਉਹਦਾ तरीका की है, गुरु के शब्द की विचार। ਇਹਦਾ मैं हुण ਇਹਨੂੰ क्लीयर करा, शब्द की विचार ਕਿਹੜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਧਰਿਆ ਹੋਵੇ ना, तो बजुर्ग सिर ते हथ रख के कहता पुत्रा घबरा ना, मैं तेरे नाल, ते बंदा कायम हो जाता है। मैं अपने सुभाव के मुताबिक, क्योंकि गुरबाणी बहुत गूढ़ है तो साड़ी पहुँच उतों तक बरीकी तक नहीं। मैं मंजी साहब जो भी कथा करता, मैं भाई गुरदास दी पौड़ियों 1-2 पौड़ियां कर कढ़ के ना तो अपना टाइम पास कर लेना। मैं नकल मार के कथा करदा, जिवें कमजोर विद्यार्थी ना पर्चियां लै लैंदा, तो मैं भाई गुरदास दी 1-2 पौड़ियां लैके अपना टाइम पूरा कर लें। तो कहते ज्ञानी कथा बड़ी वधिया करदा। भाई गुरदास दियां वारां दे विच मैनूं एक पंक्ति मिली, वो कहंदे ने रहे न संसा सोग झात एक पावनी। वैसे पौड़ी लम्मी, मैं सारी नहीं लेनी, आप में 2 दी पॉइंट लेना। एक पंक्ति तीर्थ पुरब संयोग पैर तुआमणी। लोग तीर्थां ते जांदे, वेखो गुरु नानक पातशाह ने साडे ते किन्नियां रहतां कीतियां, आपां तां कदरदान ही नहीं। साडा गुरु कहंदा जे तू गंगा नहीं जा सकता कोई गल नहीं, तेरा इत्थे सार देंगे। जे तू प्रयागराज नहीं जा सकता तो कोई गल नहीं, सार देंगे। कहंदे किवें? कहंदे किसी गुरसिख दे पैर धुआ दे, तेनू घर बैठिया 68 तीर्थां दा फल मिल जाएगा। ये मैं नहीं कहंदा, मां भानी दा वीर गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दा मामा जी ते गुरु अमरदास पातशाह दा भतीजा कह रहा है, जिन्हें इन्हां हत्थां दे नाल गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी लिखी है। वो महापुरुष वो कहंदे ने तीर्थ पुरब संयोग पैर धुआवणी, किसी दे पैर धुआ देने। होम जग नहीं वेद चने चुमावणी, तू लंगर करन जोगा नहीं, तेरी गुजाइश नहीं। किसी नूं छोलियां दी मुठ खवा देगा ना, ये हमना दे जगां दे बराबर है। होम जग नई वेद चने चुमावणी, पर चने भी कुछ सदकी खावेगा तां गल बनेगी, जे भुखा खावेगा तो उन्हें तो आखना छोले चबाए ने।
इत्थे मेरे सामने एक होर इतिहास की घटना कि भी छकण वाले किहो जिहे होण। जदों कलगीधर पातशाह मुक्तसर साहब नूं गए ने ना, कोटकपूरे कोल लंघ के एक सराम पिंड है, सराम पिंड विच गुरु पातशाह ने पड़ा किया ते ईरखा कोई थका जगह नहीं जिथे ईरखा ना होवे, कोई जगह भागां वाली जिथे ईरखा नहीं तो ईरखा हर थां ते चली जाती है। आ बाबे का स्टेज ही बड़ा खुला बनाया, चलो इन्हें आख्या भी लड़ना पैण, जे किते छोटी होंदी ना तो जेड़ा आगे आगे बह गया तो जी कहना भी हुण तां अगे बह गया बाहर पुत बनावांगा। ये वड्डा नंबरदार आ गया मेरे सामने, बड़े अगे होके बह गया, एडा पौड़ा जे मैं दा एडी चंदरी है, ईरखा हर थां ते है। उस पिंड विच गए ने ते अरखालू बंदे, ये साडे च बहुत वड्डा ऐब है, असीं दूजियां नीवां खोना चाहुंदे, नीवां मेरी गल एक पल्ले बने जे, बाकी भावें सारियां भुल जाओ। गुरमुखो किसी की कमजोरी ते पर्दा पाओ, रब साड़ी ते पाएगा। बाकी मैं जिन्ना बोलिया सारा तुहानूं भुल जाए ना, पर मेरी एक बेनती मन्निया जे, किसी के औगुण वेख के किसी की कमजोरी वेख के उन्होंने ढकिया करो। बंदा ना ढकेगा पर यह पर्दा ढकेगा, मैं गारंटी देना तुहानूं। मैं जज्बाती नहीं बोल रहा, साडे वडेरियां ने अरदास में शब्द लिखे ने, जिन्ना वेख के अंडिठ किया तिन्ना प्यारियां सचियारे की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ना वेख के अंडिठ किया है। उस नगर च गए तो जेडे थोड़े जे सौखे ने कहन लगे जी कट्ठा लंगर करना औखा, जो साड़ी बेनती भी सिंघां नूं दो दो सिंह जाएगा कि सिंह वंड के भेज दो घरी। कहन लगे कोई गल नहीं, गुरमुखो लै जाओ। एक सिंह अत गरीब है, ਉਹਦੇ घर गुरसिख गया, गुरु नानक पातशाह साडे ते किते मेहर करे, साड़ी अवस्था बन जाए, मैं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह को भिखिया मंगदा। गरीब सिख के घर गुरसिख गया, ਉਹਦੇ घर रोटी खाने की गुजाइश नहीं, उन्हें चौल नहीं बनाए, रोटी नहीं बनाई, उन्हें पीलां बाल के ना ते गुरसिख के अगे रख दी। ये इतिहास की गल जे, नावल नहीं, कोलों बनाया टोटका नहीं, इतिहास। ये गुरसिख क्यों वजह चाहिए, किनू खोना है। उन्हें पीलां बालियां, लूण पाया, खवाया। धन गुरु ते धन गुरु के सिख। सिख ने अरदास की, पातशाह जिस भंडारे भंडारे छके, भंडारे भरपूर कर, किते साड़ी अवस्था बन जाए। जिस भंडारों भंडारे छके, भंडारे भरपूर कर दे। उन्हें ये नहीं वेख्या भी की खादा है। चले गए सतगुरु पातशाह दे कोल, जेड़े निंदक सन उन्होंने चैन नहीं आता भी उन्हें खवाया कख नहीं, उसकी बदनामी होके पूछिए भी की खा के आया। बाकी सारे ने आख्या जी मैं ये करूँ खीर खा के आया, कड़ा जो जो कुछ खादा। तो जो वो वारी आई ना, कहने लग गुरमुखा ने की शिकाया। कहने लगा पातशाह मैं तो की दसा, मैं तो तलवार करदा गुरसिखां दा धन तुसीं, मैं इहो जिहा पकवान कदे खाधा ही नहीं जे। हुण उन्हां नूं फिर ताप भी ये दिसदा क्यों नहीं भी इन्हें की खाधा। वो कहण लगे जी पुछो तो की खा के आया। तो कलगीधर पातशाह हस के उन्होंने पासे करके कहने लगे की खा गया गुरमुखा, झूठ तो नहीं बोलिया। कहने लगा जी तुहाडे सामने झूठ बोल सकदा मैं कदे नहीं जी अज तक पीना खाधिया। मैं तुहानूं कहा ना भी मैं वो खा गया जिहड़ा कदे नहीं खाधा। रोटी भी खाई दी, खीर भी खाई दी, चौल खाई दी, बड़ा कुछ खाधी दा। इहने मैनू पीला खवाइयां जे, मैं सच बोलिया। इस करके पातशाह मैं आख्या भी मैं वो खा के आया जिहड़ा कदे नहीं खवाया। तो गुरमुखो सराम पिंड विच मेरे कलगीधर बापू ने आख्या गुरमुखा इहदा तू पर्दा ढकिया, तेरा पर्दा मैं ढकांगा। साडा इहो जिहा जीवन चाहिदा जे। असीं तां गुरसिख हां, साडे ते गुरु कृपा करे साडी किते अवस्था बन जाए। जिहड़ी मैं पंक्ति साझी करके समाप्ति करनी वो ये है, ये पंज मरनगे किवें। आपां गल कीती है पंजां औगुणां दी। पहला बीमारी, मुड़ के इलाज। बीमारी की है,
सानू 5 ऐब ने, बीमारियां ने। काम साडे अंदर, क्रोध साडे अंदर, लोभ साडे अंदर, मोह साडे अंदर, हंकार साडे अंदर। मैं एक तवा लाना होना भी बाबे ने लिफाफा देना ना, ये हुण बाबियां दी मर्जी, पता मोटा देना कि पता देना। जे तो देणगे चंगा, ठोकिया तो बाबा शिंदे सिंह ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वे की सर्टिफिकेट मिलता है। नाल ही छाप देंगे, अमृतसर जाने तो पहले छाप देंगे प्रिंट प्रेस। तो जे है बाबे का लिफाफा पतला, ये हूँ बाबे को पता, मैं तो मौका दिता भी संभाल लो, मौका जी मौका जी। जे है ना पतला तो नाल दे मैं ड्राइवर को कहना भी बाबे की पग वेखी, आह करतूतां ही बाबे दियां, 50-50 के नोट, तो किड्डी पगड़, बड़ा बड़ा संत बनया। गाना भी लख लांत सानू, लख लांत सानू। करनी गुरु की कथा, करनी साते संतोख की कथा। गुरु के सिखा फरीदा जान लभता न्यो किया, लभता कूड़े न्यो, किचर चत लंगाइए छप्पर टुटे म्यो। जे न्यो है तो लभ नहीं, जे लभ है तो न्यो नहीं। गुरु कृपा करे सानू न्यो बख्शे। ये मेरी गुरु पातशाह की चरना च अरदास बेनती है, सानू न्यो बख्शे, सानू लभ ना बख्शे। पंक्ति है, रह न संसा सोग झात एक पावनी। गुरु के सिखा जे धर्म अस्थान, धर्म मंदिर विच, कल ज्ञानी जी कथा करके धर्म के बारे गए ने, ज्ञानी पिंदरपाल सिंह। आप धर्म नूं छोटा करी जाने, गुरुद्वारे आया जे फलाने थां ते ना जाए, बिल्कुल असीं गलत कर रहे हैं। साडा बापू कहंदा दिओरा मसीत सोई, कलगीधर बापू, दिओरा मसीत सोई, पूजा और नमाज होई, मान सब एक अनेक को प्रभाव है, एक नैन एक कान, एक देह एक बान, खाक बाद आदशाह ओ आप को लाओ है। पंजां तत्तां दी देह है, भावें हिंदू है, भावें सिख है, भावें मुसलमान है। धर्म की व्याख्या गुरु पंचम पातशाह तो वध सुंदर कोई नहीं जे कर सकता। उन्होंने फरमाया धर्म की व्याख्या, कहते सर्ब धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारे धर्मों तो श्रेष्ठ केड़ा है? परमात्मा की इबादत नाल कम ने कर, जिन्हों अंग्रेजी में कहते ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। वैगुरू ते विश्वास कर, नाल कम ने कर। गुटका सारा पढ़ लिया पर ठगियां अजे मारना गुरमुखा, गल नहीं बनी, गल नहीं बनी। रो विचार, रह न संसा सोग झात एक पावनी। इसकी व्याख्या आउंदी है, एक चोर दे घर बेटा सी, बाप गुजर गया, माल मत्ता बड़ा जमा है, जवानी का मौका सी, पहरा सी। अपनी मां नूं कहण लगा, बेबे बड़ा मैं खाधा है, बाकी मेरे मित्र सारे काम करते हैं, मैनू ये दस भी मेरा बाप की काम करता सी, मैं वेलिया नहीं खाना। मां बड़ा टाला करती है, आखिर मजबूर किया तो कह लगी, पुत जे तू पुछ लिया ना तो मैं तेनों दस दी भी तेरा प्यो चोर सी। हुणे तेरी मर्जी भी तू चोरी करनी की करना। चल एक गल, दो गल्लां मेरी होर पल्ले बन ली। तेरा बाप चोर सी, तू मर भावें जावें पर मनना नहीं, तो कामयाब तां रहेगा। किसी मंदिर में भुल के नहीं जाना। मंदिर का भाव ना गुरुद्वारा, मंदिर मसीह सारे आ जाते रहे। तिगां तेरी मर्जी कर चोरियां पुत्रा। हुण जवानी में कुछ करन दा बंदे दे अंदर माह हुंदा है। कहण लगा माड़ियां नूं की लुटना है। राज का घर पन्नो ने माल मता लिया, पंड बन ली, घर नूं तुरिया आ रहा। कुदरती तौर पर ढो ढुका मंदिर के बूहे अगे आया, तो अगे पुलिस के मुलाजम गश्त करते आ गए। जो वो आए ना तो हुण की करे, बेबे की गल भी चेते, मां कहती सी मंदिर च नहीं जाना। उधर पुलिस वाले जे सीधा गया तो उन्हें काबू कर लेना। कहन लगा मंदिर इट्टां दा बनिया, इट्टां सानूं खांदियां ने, आपां मंदिर की गल ही नहीं सुननी। भाई मंदिर का भाव सी भी उत्थे जावेंगा, कोई धर्म की सिक्ख्या देणगे तो चोरी छड्ड देगा, आपां गल ही नहीं सुननी। मंदिर इट्टां सानूं वढ़दा। जदों अंदर वड़िया ना, रब ढो ढकाउंदा है। मैं ये आम उदाहरण देना होना,
मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू की एक पुस्तक पढ़ी सी अंग्रेजी च, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। उदों असीं इकट्ठे पढ़ते हुंदे सन ते पहला चैप्टर सी उस किताब का चाइल्डहुड। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ मैं पढ़िया सी कि मनुख ਨੂੰ ਉਹਦਾ वातावरण महान बनाਉਂਦਾ है। ਜਿਹਨੂੰ माड़ा वातावरण मिल गया वो माड़े पासे चला गया, ਜਿਹਨੂੰ चंगा वातावरण मिल गया वो चंगे पासे चला गया। वातावरण मनुख के जीवन पर प्रभाव पाਉਂਦਾ। चंगिਆਂ ਦੀ संगत करो चंगे तो माड़िਆਂ ਦੀ माड़े हो जाएंगे। जो मंदिर में गया ना, ढो ढुका थले पैर में कोई चीज चुभी तो कान के उंगलों लिया सन। जो उंगल पासे कढ़ी ना तो मंदिर का पुजारी जोड़ा को उतों का कथावाचक कोई पंडित है कोई कह लो, उन्हें कथा करदे गल आखी भी देवता परछावां नहीं हुंदा, देवते का परछावां नहीं हुंदा। उन्हें फिर कन्ना चुंगला ले लिया, घर चला गया। किसी नूं शक नहीं, लोगों नूं कुटमार हुई। आखिरकार सरकारां बड़ियां चंट हुंदियां ने, कहण लगे भी आपां नीति वरतीए नूं, आ मुंडा कख नहीं करता, हो सकता चोर हो सकता, शक की बना ते उन्हें फड़िया गया। कुटमार की क्योंकि माँ ने सिक्ख्या दी सी, पुत तू मनना नहीं, बड़ी कुट खाधी। नीति वरती, एक बीबी नकली देवी बनी, नकली शेर नकली बाहवां ते जिथे हवाला बंद सी ना उत्थे आण के कहण लगी पुत तेरा प्यो मेरा सेवक सी ते मैनू ये दस भी तू चोरी की कि नहीं की। चिते पुणे च पै गया भी एक पासे देवी माता है, एक पासे मैं चोरी की, हुण देवी अगे झूठ किवें बोलां। अजे झूठ बोलने की तैयारी कर रहा, मंदिर की गल चेते आई भी देवता परछावां नहीं हुंदा, उहदा परछावां सी क्योंकि देवी तो है नहीं सी, नकली सी। जदों वेख्या ना परछावां, उन्हें आख्या मां भावें मार भावें छड़ पर मैं चोर नहीं, उन्होंने छड़ दिता। भाई गुरदास जी कहते भी वो कथावाचक नहीं, वो ग्रंथ नहीं पढ़िया, लेकिन एक आवाज उहदे कन्नां च पई, वो मुक्त हो गया। इस कर गुरमुखा रहे ना संसा सोग, झात एक पावनी। गुरु दे दर ते झाती मारेगा ना, तेरे संसे ते सोग चके जाणगे, पर गुरु कर झाती मार। ते झाती केड़ी मारनी है? सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल लाओ। सतगुरु पातशाह साडे ते कृपा करन, असीं गुरु घर विच आके केवल ते केवल गुरु नूं वेखीए, दूजियां वाल न वेखीए तो गुरमुखो बात बन जाएगी। सतगुरु पातशाह साडी ये अवस्था बनाउण। धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह का धन्यवाद, गुरु के संगतां का धन्यवाद, भुलां चुकां की माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।